ایک تھی لومڑی جو دوسری تمام لومڑیوں کی طرح چالاک اور عیار تھی اور چونکہ اتنی طاقت نہ رکھتی تھی کہ شیر اور چیتے کی طرح شکار کر سکے، اس لیے ہمیشہ چکنی چپڑی باتوں اور مکر و فریب کے ساتھ پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو اپنے جال میں پھنساتی، میٹھی میٹھی باتوں سے ان کی قربت حاصل کرتی اور پھر اچانک انہیں دبوچ کر ہڑپ جاتی۔ ایک روز یہ لومڑی صحرا کے وسط سے گزر رہی تھی اور اپنے دل میں سوچ رہی تھی، آج میں نے کچھ نہیں کھایا، کڑاکے کی بھوک لگی ہے، مجھے چاہیے کہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھوں، اور اگر میرا سامنا کسی خرگوش، چکور، پرندے، مرغے یا کسی اور جاندار سے ہو جائے تو مجھے ایسا ہیلا کرنا چاہیے کہ وہ مجھ سے خوف کھا کر بھاگ نہ لے۔ لومڑی یہ سوچتی ہوئی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ کسی جانور کو جو اس کی خوراک کے لائق ہو پھانس لے تو اسے کیا تدبیر کرنی چاہیے اور کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ اس کے نزدیک آ جائے۔ اچانک اس نے رستے میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ رستے کے عین درمیان مٹھی بھر گھاس بکھری ہوئی تھی اور اس کے آس پاس لکڑی کا ایک ٹکڑا اور رسی کا ایک حصہ پڑا تھا، اور ان کے درمیان ایک تازہ مچھلی نظر آ رہی تھی، ایک موٹی تازہ مچھلی۔ لومڑی پہلے تو یہ سمجھی کہ بھوک کی شدت کے باعث اس کی آنکھیں کچھ سے کچھ دیکھ رہی ہیں اور مچھلی کہیں موجود نہیں، لیکن وہ تھوڑا سا آگے بڑھی اور غور سے دیکھا تو وہ واقعی ایک مچھلی وہاں موجود تھی اور اس کی بو اس کے دماغ میں گھسی جا رہی تھی۔ اگر کوئی گوشت خور جانور ہوتا تو فوراً لپکتا اور مچھلی کو ہڑپ کر جاتا، لیکن لومڑی بھوکی ہونے کے باوجود اس جگہ کھڑی رہی اور سوچتی رہی، اچھا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مچھلی موجود ہے، مچھلی کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہی سمجھنا ضروری ہے کہ اس جگہ مچھلی آئی کہاں سے۔ یہاں دریا کا کنارہ بھی نہیں کہ کہاں جائے کہ مچھلی اچھل کر باہر آ پڑی ہو اور ہلاک ہو گئی ہو۔ مچھلی فروش کی دکان بھی یہاں نہیں، باورچی خانہ بھی یہاں دکھائی نہیں دیتا، پھر یہ بھی کہ مچھلی کوئی صحرائی جانور نہیں کہ اپنے پاؤں چل کر یہاں آ گئی ہو، لہٰذا اس صحرا میں مچھلی کے ہونے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ لکڑی اور ریتی شکار کا جال ہے اور یہ مچھلی کسی شکار نے یہاں لا ڈالی ہے اور خود کسی کونے خطرے میں چھپ گیا ہے تاکہ کسی لالچی جانور کو اپنے دام میں پھنسا لے، یا کہ کسی ماہی گیر نے دریا سے ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑی اور اس رستے سے جاتے ہوئے یہ مچھلی اس کے پشتارے سے گر پڑی اور اسے پتہ نہ چلا۔ بہرحال خطرہ موجود ہے، سو مچھلی کھانے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دراصل لومڑی کچھ عرصہ پہلے دیکھ چکی تھی کہ کیسے اچانک شکاری کے جال میں حرکت ہوئی تھی اور اس کی ایک سہیلی پھندے میں آ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ وہ ایسی چیزوں کو پکڑنے اور کھانے میں جلد بازی نہیں کرے گی جن کی اصلیت حقیقت اسے معلوم نہ ہوگی۔ آج بھی اس نے اپنے دل میں کہا، سردست تو اس صحرا میں کوئی نظر نہیں آتا کہ مچھلی کو لے کر بھاگ کھڑا ہو، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مچھلی کو یہیں چھوڑ کر اصل صورتحال کا کھوج لگاؤں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے ایسی خوراک مل جائے جو اس جیسی ہو۔ لومڑی نے مچھلی کو اس طرح چھوڑا اور آگے بڑھنے لگی۔ وہ کافی دیر تک چلتی گئی مگر اسے کوئی شکار ہاتھ نہ آیا، حتیٰ کہ دور سے ایک بندر دکھائی دیا جو اس رستے سے چلا آ رہا تھا۔ لومڑی جانتی تھی کہ بندر کو کھانا ناممکن ہے، لیکن اسے اتنا معلوم تھا کہ ہر کسی کو میٹھی باتوں اور نرم گوئی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بندر کو دیکھ کر اس کے دل میں اچانک ایک خیال آیا اور اس نے اپنے آپ سے کہا، جو چالاکی کی بھی مجھ سے بن پڑے، مجھے بندر کو مچھلی کی بساط تک لے جانا ہوگا تاکہ میں اس کے بھید سے آگاہ ہو سکوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی چال چلنا شروع کر دی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کی پشت کی طرف ہو کر صدا بلند کی، میاں بندر ذرا رکیے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔
एक लम्हे को ठहरिए। बंदर ने अपना मुंह मोड़ा और जो ही लोमड़ी को देखा दोबारा आगे बढ़ने लगा। जब वो एक दरख्त के नजदीक पहुंचा तो उस पर चढ़ गया और टेक लगाकर बैठ गया। लोमड़ी भी दरख्त के नजदीक चली आई और उसके बिलमुकाबिल खड़ी होकर लगी तेज तेज बातें करने। कुर्बान जाऊं, सलाम अर्ज करती हूँ। मैं नहीं जानती खुदा का कैसे शुक्र बजा लाऊं कि आपसे यहाँ मुलाकात हो गई। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि आज बिल आखिर अपने मकसद में कामयाब हो गई और आपकी खिदमत में पहुँच पाने की इज्जत मुझे मिल गई। यकीन जानिए, आज मैंने आपकी तलाश में तमाम सेरा की खाक छानी, तब जाकर यहाँ पहुँची। शुक्र खुदा, अब मेरी दरख्वास्त है कि आप जल्दी करें, वक्त कम रह गया है। नीचे आइए, मेरी ख्वाहिश और आरजू पे तमाम लोग आपकी राह देख रहे हैं। बंदर को ये बातें सुनकर बड़ी हैरत हुई। उसने जवाबन कहा, मुझे नहीं मालूम तुम क्या चाहती हो। इन बातों से तुम्हारा मकसद क्या है? लोमड़ी बोली, आखिर तमाम जानवर जंगल के मैदान में जमा हैं और आपकी तशरीफ लाने के मुंतजिर हैं। मेहरबानी करें, आइए, हम जल्द लौट आएंगे, रास्ते में बातचीत करेंगे। बंदर बोला, जानवर, मेरे तशरीफ लाने का इंतजार आखिर किस लिए? क्या मकसद है? यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे जानवरों से क्या लेना देना? लोमड़ी बोली, हाय अफसोस, मालूम होता है कि कल आप जंगल में ना थे, उसी वजह से आपको अभी तक खबर न हुई। आज सुबह जंगल में कयामत का समा था। कल तमाम दरिंदे परिंदे और चरिंद इकट्ठे हुए और उन्होंने शेर को बादशाहत से हटा दिया और वो भी जंगल से भाग गया। बात यह है कि शेर बड़ा खबीस हो गया था, हर एक पर जुल्म और जबर करता था। बल आखिर तमाम जानवरों ने यक्का कर लिया और उसे बादशाहत से हटा दिया। फिर नया बादशाह मुकर्रर करने के लिए राय तलब की गई कि किसे अपना हाकिम और रईस मुकर्रर किया जाए। तमाम जानवर बोले, हमारा हाकिम और रहनुमा बंदरों में से चुना जाए। बंदर बोला, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं। एक बंदर कितना ही होशियार और सियासत का माहिर क्यों ना हो, वो तमाम जानवरों पर अपना हुक्म चलाने के लायक नहीं होता। हम बंदर पर यकीन इस काबिल हैं कि हर काम खूब अंजाम दें, मगर सियासत करना हमारी दस्तरस से बाहर है। मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। जानवरों का बादशाह किसी ऐसे शख्स को होना चाहिए जिसकी सूझबूझ तमाम जानवरों से ज़्यादा हो और उसका बस हर एक पर चल सके। लोमड़ी बोली, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप मान जाएं। जब सब जानवर राजी हैं तो इसमें बुराई क्या है? आज के दिन जुल्म और सितम और धौंस और धांधली रुखसत हुए और जब सबने इजहार राय किया और खुद ही एक शख्स को चुन लिया तो इसकी हिमायत भी यकीनन करेंगे। फिर ये भी है कि बंदरों की जहानत सबसे बढ़कर है। वो इंसानों की ज़बान बेहतर समझते हैं, दरख्तों की चोटी तक जा पहुँचते हैं, हुनरमंद और ज़हीन हैं। और फिर जुल्म और अकड़बाजी तो किसी को अच्छी नहीं लगती। जानवर ऐसा रहनुमा चाहते हैं जो जालिम ना हो और बंदरों से आज तक किसी ने बदी नहीं देखी। फिर ये भी कि बंदरों की जमात ने आपका बेक आवाज़ और पूरे इत्तेफाक से इंतखाब किया है और अब वो जंगल के मैदान में जश्न मना रहे हैं। उन्होंने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपको इस खुशखबरी से आगाह करूं और इल्तिजा करूं कि आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले चलें ताकि हुकूमत के कारोबार को तरतीब दिया जा सके। आखिर ये कौन सी अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारी कबूल करने से बचें। आपको इसार से काम लेना होगा, खिदमत करना होगी। सब हाज़रीन आपके मुंतज़िर हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आइए चलें। बंदर को अभी तक इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर साथ ही साथ उसके दिल में हुकूमत का लालच पैदा हो गया था। चुनाचा वो बोला, क्या कहूँ, मुझे नहीं मालूम। लोमड़ी बोली, बस काम हो गया। इन लम्हों को गनीमत जानिए, जल्दी कीजिए, आइए चलें। बंदर जो इस सूरत हाल से खुश था, दरख्त से नीचे उतरा और लोमड़ी के हमरा चल पड़ा। वो जिस रास्ते से आए थे उसी तरफ चल दिए, लेकिन बंदर अभी तक शक का शिकार था, गोया उस लोमड़ी की बातों पर यकीन न था। चालाक लोमड़ी ने बंदर को मजीद सोचने की
फुर्सत ही ना दी। वो बातें करती जाती थी, बादशाहत और हुकूमत के बारे में इजहार ख्याल करती जाती थी और बंदर को नसीहत करती जाती थी कि बादशाहत कबूल करने के बाद वो हमेशा अदल व इंसाफ को पेश नज़र रखे और शेर के जुल्म व सितम की तलाफ़ी करे, ताकि उसके अदल और इंसाफ के साए तले तमाम जानवर अल्लाह का शुक्र बजा लाएं और सुख का सांस लें। बस वो इसी तरह चलते गए और लोमड़ी मुसलसल बोलती गई। और जब वो उस जगह करीब पहुँचे जहाँ मछली पड़ी थी, लोमड़ी ने अपनी बातों के आखिर में कहा, मैं हमेशा पेशन गोई की कायल हूँ। बस लोगों का ख्याल है कि फाल और पेशगोई वगैरह किस्सा कहानी और वहम परस्ती है, लेकिन मैंने अपने बाप से सुना है कि पेशन गोई सच है। मेरे वालिद मरहूम हर चीज़ से वाकिफ़ थे। उनके मुंह से कभी ना सुना था कि वो फला बात नहीं जानते। वो अगर कोई बात कहते और दूसरा उस पर यकीन न करता और दलील तलब करता तो इन्हें बड़ा रंज होता। इस ज़मन में खुद मेरा तजर्बा भी ये है कि जब कभी मैंने दिल से नियत की अपने सारे हवास कायम रखे तो कोई ऐसी सूरत पेश आई कि पेशन गोई का अच्छा बुरा मालूम हो गया। ये कितना अच्छा हो कि अब इस काम के बारे में हम फाल लेने का इरादा करें। हम ये तय करें कि अगर हमारे रास्ते में खाने की कोई उम्दा चीज़ नज़र आ जाए तो उसे नेक फाल समझें, और अगर कोई चीर फाड़ करने वाला जानवर नज़र आए तो उसे बुरी फाल समझें। इस वक्त अब आप भी इस फाल के मुताबिक अपना लाहिया अमल तय करें। बंदर बोला, मुझे कुछ नहीं मालूम, शायद तुम्हें ज़्यादा इल्म है। कहते हैं कि लोमड़ियाँ बड़ी होशमंद और दाना होती हैं। अब वो उस बसात के करीब आ गए थे जहाँ मछली पड़ी थी। लोमड़ी खुश होकर चिल्लाई, वाह वाह, हमारी फाल अच्छी निकली, ये है उसकी निशानी। मछली, एक तरोताज़ा मछली, खुश्क और चटेल बयाबान में। सच्ची बात तो ये है कि हमारी फाल का हाल खूब है। अब ए अजीज़ बंदर, आपको इस मज़ेदार खुराक से लज्जत लेनी चाहिए और आने वाले हालात से मुतमईन और खुश हो जाना चाहिए। बंदर को ये मंजर देखकर बड़ी हैरत हुई और वो हंसते हुए लोमड़ी से गोया हुआ, सच कहा तुमने, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि पहले तुम बिस्मिल्लाह करो। हम एक दूसरे के दोस्त हैं और खुदा जो नेमत दे इसे मिलकर खाएं। लोमड़ी बोली, ये नामुमकिन है, सख्त मुश्किल है कि मैं ऐसी जिसारत करूं। ये खुराक आपका हक है, मैं इसी में खुश हूँ कि मेरी फाल पूरी हुई। हम तो आपके नमक खोर हैं। मेरी इल्तिजा है कि आप इस लजीज मछली की तरफ मुतवज्जा हो और फिर हम आगे चलें। तमाम जानवर हमारे इंतज़ार में हैं। बंदर की भूख चमक उठी थी। वो फौरन मछली की तरफ लपका। उसने हाथ बढ़ाया कि मछली को उचक ले, लेकिन अभी उसका हाथ मछली तक ना पहुंचा था कि लकड़ी और फंदे ने अपनी जगह से हरकत की और बंदर के हाथ पांव जकड़े गए और जैसा कि लोमड़ी ने कयास कर रखा था वो जाल में फंस गया। अब लोमड़ी के पास कहने को कुछ ना था, जाल अपना काम कर चुका था। शिकारी भी अभी नजर नहीं आ रहा था। लोमड़ी ने इस मौके को गनीमत जाना। वो मछली के करीब आई, उसे उचक लिया और खाना शुरू कर दिया। बंदर अभी तक न समझ पाया था कि ये सारी मीठी मीठी बातें इस मछली की खातिर थीं। वो लोमड़ी से गोया हुआ, ये क्या हुआ, मैं कैसे जाल में आ फंसा और तू है कि मज़े उड़ा रही है। लोमड़ी बोली, हाँ हाँ, हर किसी को अपने अमल का हिसाब करना चाहिए। बादशाहत का नतीजा कभी कभी यूं भी निकलता है। तुम जाल में फंस गए क्योंकि तुमने मछली देखी मगर जाल न देखा। मैं उस मछली को खा खा कर मज़े ले रही हूँ क्योंकि मैं हर काम में अपने होशो हवास कायम रखती हूँ और आंखें खोल कर चलती हूँ। लो मैं चली। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।